સ્વામીજી 1 થી 5 ચિન્મય સરે લીધા છે. 1 થી 5 हाँ चलो 1 થી 5 तो क्लियर है. आगर 6 to 9 6 to 9 એ ત્યાગ, 3 પ્રકારના ત્યાગ એની વાત છે. કોણ લેશે? અચ્છા કે હું આપું છું. હા, એનીબડી? આપી દેવામાં આવે. ઓકે, કન્ફ્યુઝન થતું હશે કયું કયું ઈઝી છે એમ. આ ઈઝી નથી લાગતું, પેલું ઈઝી નથી લાગતું. ઓકે, તો 6 7 8 9 6 to 9 એ રજની. હા સ્વામીજી. જી સર. પછી શું છે નેક્સ્ટ? 10 to 12 10 11 અને 12. આ કોણ લેશે? બીનાબેન? जी ઓકે, भैया भैया स्वामी जी 10 થી 12 ओके પછી આવે છે 13 to 17. 13 to 17 13 to 17 નીલાબેન? છે ને? નીલાબેન ને કહી દેવાનું. પછી 18 to 22 18 to એમાં 3 પ્રકારના જ્ઞાનની વાત છે. પૂજા? Okay. પછી નેક્સ્ટ 23 to 25 5 એમાં 3 પ્રકારના કર્મની વાત છે. દીપાબેન? जी स्वामीजी मारू नाम लीधुं ने? હા. ओके हाँ 26 to 28 સ્વામીજી મેં લીધા છે. કરતા, 3 પ્રકારના કરતા. 29 થી 32 એમાં આવે છે ધૃતિ. બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિ છે. કૃષ્ણાબેન? કૃષ્ણાબેન ભટ્ટ? जी स्वामी जी પછી 33 to 35 પલ્લવીબેન તમે? પલ્લવીબેન અહીંયા જ છે. 36 to 39 સુખ આવે છે 3
પ્રકારના મને શું કીધું છે? 36 36 39 મોનિકા કહી દઉં પછી સ્વામીજી હું લેફ્ટ થઈ ગઈ હતી 36 to 39 કોને એલોટ મોનિકા હા પછી 40 to 44 43 44 સબ્જેક્ટ રાજસિક સામગ્રી ચાર ચાર પ્રકારના એના લક્ષણો કોને ફાવશે મિતા કહેજો ટ્રાય કરીશ. બોલો 45 to 48 હવે આવે છે સ્વધર્મ અને પરધર્મ એ પ્રકારની વાત હા સ્વધર્મની વાત આવે છે 45 to 48 હવે આ કોને લેવું છે કોઈ પણ બાકી છે મને એમ કહેજો ને તો ઈઝી ભાઈ બહાર છે ને એટલે એ બધા તો પછી સ્વામીજી બાકીમાં થોડાક રેગ્યુલર સાધક છે પણ આજે કોઈ દેખાતા નથી જેમ કે હરેશભાઈ છે સોનલબેન છે હા બરાબર સોનલબેન ને આપી દેવાય બરાબર 45 to 48 એ સોનલબેન 49 થી અને 49 to 51 51 બરાબર છે હવે પછી એ હરેશભાઈ છે એટલે 49 થી 51 હરેશભાઈ પછી 52 to 55 55 હરિઓમ સ્વામીજી દિવાકરભાઈ હા 55 પછી 56 થી કયું છે 60 છે 60 52 to 55 છે ને એ દીપ્તિબેન સોરી સ્વામીજી 56 52 to 55 કયું કીધું દીપ્તિબેન નો નંબર યા 52 to 55 ઓકે તો દિવાકરભાઈ નહીં ના ના દીપ્તિબેન ઓકે ને 56 થી 60 ને પછી આફ્ટરવર્ડ શું છે 61 થી 4 4 ઓકે પછી દિવાકરભાઈ અને બીજું કોણ છે બીજું સ્વામી નથી ખબર નથી ખબર એવું કીધું
ઓકે, તો પછી આપણે રિપીટ કરી લઈએ, સિમ્પલ કરીને ને. તો 56 થી 60 છે ને એ ચિન્મય રિપીટ કરી લે, અને 60 થી 60 61 થી 61 to 64 છે. 61 થી 64 દિવાકર ભાઈ. 65 અને 66 બંને પૂજા યુ જી સ્વામીજી. પછી 67 થી 73 હવે બધા સહેલા સહેલા છે એવું લાગે, એવું છે જ, એવું છે. 67 થી 73 સહેલા છે એટલીસ્ટ, અને પછી 74 થી 78 74 થી 78 સેકન્ડ વાળો લઈ લીધો, સેકન્ડ ટાઈમ બે લઈ ખાલી સ્વામીજી 74 to 78 મેં લઈ લીધા છે. અચ્છા, એટલે તમે બે સ્લોટ લઈ લીધા છે, રાઈટ? હા, મેં કીધું ઘણા બધા છે એટલે રિપીટ થશે જ. વન્ડરફુલ. ઓકે, તો બીજો સ્લોટ તમે લઈ લો ભલે. હા, એ તો એને તો લાભ છે સિનિયર. ઓકે, તો ચલો આખી ગીતાનું આવી. હા, અને આ સિવાય જો બીજા કોઈને લેવા હોય તો મને કહેજો. થોડું વધારે હોય છે અત્યારે એ બીજા કોઈને લેવા હોય, કારણ કે ઘણાને આપણે રિપીટ કર્યા છે, કોઈને લેવા હોય કારણ કે તૈયારી કરવાની છે, બધી આખું એક પ્રિપેર કરવાનું છે, એના પાર્ટ ઓફ ઇટ હોલી ગીતાના બધા જ જેટલા શ્લોક એસાઇન કર્યા છે વાંચવાના. મારા વિડીયોઝ પણ ઓનલાઈન હશે જ યુટ્યુબમાં, એને ફરીથી જોવાના, અન્ય રેફરન્સ બુક વાંચવાની, પછી એમાંથી નોટ્સ બનાવવાની, અને નોટ્સમાંથી બુલેટ પોઈન્ટ બનાવવાના, હે ને? તૈયારી નોટ્સમાંથી પણ કરી લેવાની અને પછી બુલેટ પોઈન્ટમાંથી કરવાની, અને પ્રેઝન્ટ બુલેટ પોઈન્ટ દ્વારા કરવાનું. આટલું છે, બરાબર છે? એટલે આમ પિરામિડ બનશે તમારે. બેઝમાં ઘણું બધું વર્ક કર્યું હોય અને તમારે જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન હોય ત્યારે તમારી પાસે માત્ર બુલેટ પોઈન્ટ્સ આંખની સામે તમે જુઓ એને, અને પછી તમે એને, અને પછી ભગવાનમાં, ગુરુદેવમાં, ગીતા માતામાં શ્રદ્ધા રાખી અને પછી તમારે એને એક્સપ્લેન કરવું. અને જરા પણ એવો કન્સર્ન અંદર આવશે જ, કન્સર્ન કે બોલતી વખતે યાદ આવશે કે નહીં આવે, અને કેવું બોલાશે, હે ને? પછી લોકો કેવું જજ કરશે, લોકોને કેવું, એ બધું તમારે બાજુમાં એક નાનકડો કે મોટો ગાર્બેજ કેન રાખો ને એમાં નાખતા જ, કે હા વાંધો નહીં, એની કઈ જરૂર, આ ભાવની કે આ વિચારની કઈ જરૂર. ઓકે, એમ કામ કરીને આગળ. ઓકે, તમે બધા જે લોકોએ લીધું છે બધા ખાસ, હે ને? એ લોકો આગળ વધવા માંગો છો વિચારની પ્રક્રિયામાં, સમજની પ્રક્રિયામાં, એ ક્લિયરલી દેખાય છે. તો એમાં આ બધા કન્સર્ન્સ બધા અંદરથી આવશે, મોર ઓર લેસ, પણ એને ઇગ્નોર કરવાનું છે, અને એકદમ આત્મવિશ્વાસ સાથે અને આનંદપૂર્વક એને એક્સપ્લેન. આ તમારે ધ્યાન. હોલી ગીતા, મારા વિડીયોઝ, બીજી કોઈ બુક, એના બેઝ પર નોટ્સ, નોટ્સના બેઝ પર બુલેટ પોઈન્ટ, અને પછી નોટની અને બુલેટ પોઈન્ટની તૈયારી, એની નેટ પ્રેક્ટિસ કરે, અને બુલેટ પોઈન્ટના બેઝ પર પ્રેઝન્ટેશન. થઈ ગયું? ઓકે, તો ચેપ્ટર 18 એ પ્રકારે આપણું રિવિઝન થઈ જશે. સ્વામીજી, હા, મંજુલાબેન રહી ગયા લાગે છે. હા, પણ
એમને કદાચ છોકરાઓનું ને બધું છે ને, મને ખ્યાલ તો હતો જ એમનો, પણ એમને કામ હોય છે, મૃદુલાબેન એવું છે ને, કે આટલી બધી તૈયારી કદાચ ન હોય. બાકી એ જ કહી શકે, એમ કહીશ. હોય तो ચોક્કસ બોલો. ओके, तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं. श्लोक नंबर 74. तो यहाँ पर क्लियर है कि भगवान ने अपना उपदेश पूरा कर दिया. अर्जुन ने भी अपना अपनी कृतज्ञता व्यक्त भी की. तो तव प्रसादात, आपके ही प्रसाद से मुझे ये ज्ञान मिला है. ज्ञान के बल से मेरा सम्मोह दूर हुआ है, मेरा मोह दूर हुआ है. और हमारे शास्त्र भी इस प्रकार से स्पष्ट कहते हैं, रुते ज्ञानात् न मुक्ति ही. ज्ञान के बिगर मुक्ति नहीं है. किसमें से मुक्ति? अज्ञान से मुक्ति, मोह से मुक्ति, दुख से मुक्ति. देखो, मोक्ष की भी हमारे अंदर बहुत अच्छी सी स्पष्टता होनी चाहिए. जो स्थूल भाव से हम मोक्ष मोक्ष मान के चले जाना कहीं पर, वो नहीं रखना है. ठीक है, हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से जीवन मुक्ति की बात करते. हम जीते हैं, इस शरीर में हैं, फिर भी इस शरीर के नहीं है, शरीर के गुलाम नहीं है. शरीर मेरा गुलाम हो जाता है. और दूसरा, जीते जीते ही हम संपूर्ण रूप से मुक्त. संपूर्ण रूप से मुक्त माने के हम कहें कि हमारा जो मानस है साइकोलॉजिकली 100% फ्री, जीरो डिपेंडेंसी साइकोलॉजिकल. ठीक है, इंटेलेक्चुअली जीरो. इसका आंतरिक मुक्ति, आंतरिक भाव, उसके काफी जो आयाम, उसके रिफ्लेक्शन काफी फिजिकल प्लेन पर भी आते हैं. हमारी सिचुएशंस भी इस प्रकार से होती है कि जहां पर हम एक फ्रीडम भी महसूस करें, वो भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आंशिक रूप से होगा. पूर्ण रूप से फिजिकल लेवल पर इंडिपेंडेंस वो नहीं होता है. ठीक है, जैसे हमें जीने के लिए हाँ एक फ्रेश एयर की नीड है ना, भोजन की नीड है, वो सब रहती ही है. फिर उसके लिए अन्य लोगों की या सेटअप की या जो भी है कहें, वो कुछ ना कुछ आता है. फिजिकल प्लेन पर संपूर्ण मुक्ति नहीं. फिजिकल प्लेन पर तो आदान प्रदान वो आता है, परस्परम भावयंता वो आता है. फिर आप सोसाइटी में रहो या जंगल में रहो, तो जंगल में भी आदान प्रदान होता है. जो वहां पर रहते हैं उसको पता होता है. फिजिकल प्लेन पर ऐसा ही रहेगा और वो ठीक ही है. साइकोलॉजिकल प्लेन पर वो संपूर्ण रूप से मुक्ति. तो ये अंडरस्टैंडिंग का, ज्ञान का प्रभाव, और उसका आनंद ही अनोखा होता है ना. तो ये मोह मुक्ति का आनंद अभी अर्जुन के पास है. और इस परिणाम स्वरूप अर्जुन कहते हैं कि मेरी जो भी एक पोजीशन है सोसाइटी में, फैमिली में, राजसत्ता में, वो पोजीशन अनुसार मेरा जो धर्म है वो बजाने के लिए, वो फॉलो करने के लिए मैं रेडी हूँ. और यत्र यत्र धर्म तत्र तत्र कृष्ण. तो भगवान तो धर्म के पक्ष में ही है ना. तो भगवान जो कहते हैं वो धर्मयुक्त ही है, इसीलिए करिष्ये वचनम तव. तो जितना जैसा ज्ञान आता है, समझ आती है, उतना हमें क्या करना चाहिए? करिष्ये मम धर्म, जो मेरा धर्म है उसको मुझे फॉलो करना है. और उसके लिए जो भी जितनी जरूरी एक हिम्मत है, साहस है, सामर्थ्य है, वो जुटाना है. और हर हमेशा हमारे पास होता है ऐसा नहीं है ना. शक्ति की आवश्यकता होती है तो जुटाए. जैसे हमें घर लेना है, घर बाय करना है, तो हो सकता है कि हमें पास इतनी शक्ति ना हो, मनी पावर इतना ना हो, तो हम क्या करें? जुटाते हैं.
हम प्रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, कहीं से लेते हैं, लोन लेते हैं, वो क्या है? शक्ति है ना। तो निश्चय हो गया कि ये करना है, तो शक्ति जुटाते हैं, अगर है तो तुरंत यूज कर लेते हैं। तो सेम अप्लाइज इन अवर धर्म ऑल्सो, सेम अप्लाइज इन अवर ड्यूटी ऑल्सो। और हमारी ड्यूटी याद रहे, स्वयं के प्रति, फैमिली के प्रति और समाज के प्रति है। 3 लेवल्स, तीनों लेवल में हमें एक साथ कार्य करना है, जिसको कहते हैं बैलेंस स्ट्राइक करना है। स्वयं के प्रति भी, वो जैसे हम अभी सत्संग, स्वाध्याय, अभ्यास कर रहे हैं, वो स्वयं के प्रति ड्यूटी है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और सभी ड्यूटी इंटरडिपेंडेंट है और इंटरपोषक भी है। जैसे स्वाध्याय करते हैं तो फैमिली के प्रति और समाज के प्रति ड्यूटी का हमें ज्यादा एक भान, ग्रेविटी, अवेयरनेस रहती है, एक्सेट्रा। तो ये एक पहली बात। तो तरीशीय वचनम तव से ये लेना है। और अभी 74 श्लोक में पूरा देखें तो अभी सीन पूरा अर्जुन और भगवान का नहीं होकर संजय और धृतराष्ट्र का हो जाता है। जो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा था हस्तिनापुर में ही, राज दरबार में या राजमहल में, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत किम कुर्व संजय। ठीक है, तो हे संजय, ये सब लोगों ने किया। तो ये पूरा संजय ने नरेट किया कि भगवान ने ये कहा, फिर अर्जुन ने ये कहा, लाइक दैट। ठीक है, और फिर संजय कहते हैं अबाउट दिस उपदेश कि इति इमं संवादम अहम अश्रौषम। इस प्रकार से संवाद पूरा हो गया है, उसकी निशानी है कि इस प्रकार से मैंने ये संवाद को, बहुत ही दिव्य संवाद है, किसके बीच में हुआ था? अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में। ठीक है, वासुदेवस्य पार्थस्य च, कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में। ठीक है, गुड़ाकेश और ऋषिकेश के बीच में ये संवाद हुआ था। ठीक है, ये कौन है? महात्मा। ठीक है, तो अर्जुन महात्मा है, भगवान तो स्वयं अवतार भी है। और ये डायलॉग, ये संवाद कैसा है? अद्भुत, अद्भुत है। देखो, कोई भी संवाद अद्भुत कैसे बनता है पता है? जब जो डिस्कशन हो रहा है या फिर जो भी ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान के हार्द में जाने का तत्परता युक्त प्रयास। एक साइंटिस्ट होता है, एक इवन बिजनेसमैन होता है, एक स्पोर्ट्समैन होता है, जो अपने एरिया में जो भी विद्या है, ज्ञान है, वो देता है या कोई लेता है या फिर खोजने की प्रयास करता है, प्रक्रिया में होता है, तो वो प्रक्रिया में तत्परता होती है, एक तत्परता होती है, एक ग्रेविटी लगाव होता है। और प्रक्रिया में जैसे जैसे मिलता जाता है कुछ ज्ञान, जिसको रेवलेशन कहते हैं, परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति में एक अंदर से स्पार्क आते जाते हैं। यस यस, गेटिंग स्पार्क आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, स्पार्क नेचुरली आते हैं। गेटिंग? तो भगवान और अर्जुन के बीच में भी ऐसी एक प्रक्रिया हो। ठीक है, और वो प्रक्रिया में दोनों लगे हुए थे, सहवीर्यम करवावा है। ठीक है,
भगवान तो रेडी ही थे देने को, लेकिन अर्जुन की तत्परता चाहिए थी. इट वॉज एन वेटिंग मोड. भगवान वॉज इन अ वेटिंग मोड सिंस यस. जब अर्जुन की तत्परता होगी कि नहीं मुझे ये समझना ही है ना, ये मैं वस्तु स्थिति को अच्छे से समझूंगा तभी मुझे कुछ उकेल सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, तभी मुझे सॉल्यूशन मिलेगा. सभी मेरी एनालिटिकल बुद्धि से जितने अलग अलग कार्य के ऑप्शंस है मैंने देख लिए सब में संतोष नहीं. अभी लगता है कि मुझे मेरी बुद्धि को ही चेक करना है. दैट एग्जैक्टली इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग मोर. तो अर्जुन की भी तत्परता बन गई. भगवान की रेडीनेस तो पहले से ही है ना? भगवान करुणामय है, भगवान तो देना ही चाहते हैं. और फिर दोनों का संवाद जो होता है उसमें इस प्रकार से एक अटेंटिव प्रक्रिया होती है और बीच बीच में कॉन्स्टेंटली ऐसे स्पार्क्स होते जाते हैं. यस, मुझे ये भी समझना है. ऑटोमेटिक जो बात है ये कैसी है, अद्भुत. संवाद ही अद्भुत है. ठीक है, ये संवाद अद्भुत है और ये ज्ञान अत्यंत रहस्यमय है. कैसे, क्यों रहस्यमय? कि ये सरफेस के लेवल के ट्रांजैक्शनल विषयों का ज्ञान नहीं. ये जो सरफेस के लेवल के विषय है उसके अधिष्ठान का ज्ञान. ठीक है, और वो अधिष्ठान आंख के सामने होते हुए भी छुपा रहता है हमारी दृष्टि. क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल है, पार्थिव दृष्टि है ना, भौतिक दृष्टि. तो हमें क्या दिखाई देता है? व्यक्ति, ये आदमी है, ये औरत है, ये लड़का है, ये लड़की है ना, ये बिजनेसमैन है, ये लेबर है, ये टेबल है, ये मोबाइल है. तो हमारी दृष्टि होती है पार्थिव. तो वो पार्थिव दृष्टि जो होती है उसकी वजह से ही अधिष्ठान चैतन्य आत्मा ढक जाता है फॉर अस. जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसी सृष्टि, वो ढक जाता है. ठीक है, इसीलिए उसको रहस्य कहा है कि वो सीक्रेट है. आप कुछ करोगे तो सीक्रेट रिवील होगा. तो क्या करना है? ये पार्थिवता तो हटाना है. और ये पार्थिवता सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा कि वो बाय डिफॉल्ट होती है. बाय डिफॉल्ट हमें हर कोई जितने वस्तु है उसका वो पार्थिव अंश ही दिखता है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना लगता है कि ये जड़ है और ये चेतन, दैट्स ऑल. लेकिन जो चेतन है उसमें भी जड़ अंश ही हम हाईलाइट करते हैं हमारे अंदर. ठीक है, उसको भी विषय की तरह ही देखते हैं. कितना उपयोगी है मेरे लिए, मेरा व्यवहार किस प्रकार से उसके साथ करना. व्यवहार का बेस ही उपयोगिता है. सब पार्थिव, याद रहे. उसमें फिर गुड पार्थिव, एवरेज पार्थिव, बैड पार्थिव आता है, लेकिन पार्थिव का टैग रहेगा. ठीक है, अभी कितनी और बात करता. ये तो मैंने बात कही व्यवहार की. और बात ये थोड़ी चुभ सकती है, उसको बहुत संभाल कर लेना होता है. कुछ कुछ जो धर्म बेस की जो क्रियाएं होती है वो भी पार्थिव हो जाती है. वो भी पार्थिव होती है. उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल. ठीक है, मैकेनिकल. तो वहां पर करने का एक अंदर से एक संतोष आ गया. क्यों? क्योंकि एक टिक मार्क हो, टिक कर दिया, इसलिए मन में जो एक असंतोष था वो दूर हो गया कि ठीक है ना, है ना. और उसका जो भी ग्रॉस हमें एक रिजल्ट मिलता है वो मिलता है, ग्रॉस रिजल्ट भी मिलता है.
अवश्य मिलता है, कुछ तो किया है, लेकिन वहां पर ये रहस्य अकबंध रहता है। रहस्य का उद्घाटन करने में हमारा जो प्रयास वो दिशा के नहीं बनते। ठीक है, तो ये अद्भुत है, ये रहस्यमय है। हाँ, ठीक है, तो उसको जैसे पार्थ ने, अर्जुन ने सुना, समझा, जैसी इंटेंसिटी के साथ समझा, वैसा हमें समझना चाहिए, उस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर अंदर स्पार्क्स होंगे, रेवलेशंस। स्पार्क माने रेवलेशन, अलग अलग, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। एक ही बात, वो ज्ञान का प्रकाश, स्पार्क या रेवलेशन भी हो सकती है, और वही बात इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। बना? तो यहाँ पर क्या कहते हैं संजय जी, अरे ये तो ज्ञान का अद्भुत स्रोत, बात मत पूछो, इतना जबरदस्त, कितना जबरदस्त कि मैंने तो सुना दोनों का संवाद, और मेरा इतना उसमें मैं ओत प्रोत हो गया, इतना जागरूक हो गया, इतना मुझे उससे लाभ मिला, ज्ञान मिला कि रोम हर्षम, अद्भुतम रोम हर्षम, उसको मैं कुछ हद से ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। हाँ, अद्भुत, वंडरफुल, वो इतना मैं अभिभूत हूँ कि वो भाव मेरे फिजिकल बॉडी पर भी एक्सप्रेस होता है। जब हमारा भाव काफी ओवरफ्लो होता है तो फिजिकल लेवल पर एक्सप्रेस होता है ना। फिर वो अ, प्रेम का भाव हो, गुस्से का भाव हो, और यहाँ पर अहो भाव हो, अहो हो, अहो भाव, तो वो ट्रांसफर होता है फिजिकल बॉडी पर। ठीक है, गुस्सा ट्रांसफर होता है तो लाल लाल हो जाता है ना, टमाटे जैसे। और जब इस प्रकार से अहोभाव आता है तो व्यक्ति अवाक भी हो जाता है ना। रोम हर्षम से जाए थे यहाँ पर ऐसे तो बाल खड़े हो जाते हैं शरीर। Getting? तो अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद सुनकर संजय जी को ऐसे रोम हर्षणम हो गया। तो ऐसा अद्भुत संवाद है। पॉइंट हमारे लिए क्या है कि हमें उसको इतनी ग्रेविटी देने का यत्न करना चाहिए। और ग्रेविटी दो प्रकार से आती है, एक नीड और अर्ज टू नो ट्रूथ, या फिर भगवान को जानना, है ना, भगवान के साथ एक होना। ग्रेविटी दो प्रकार से आएगी, नीड और अर्ज टू नो ट्रूथ, पहला। और दूसरा प्रकार है हमारे बंधन का क्लियर एहसास। ठीक है, वो दूसरा है, हमारे बंधन, हमारे दुख, हाँ, हमारी लाचारी, उसकी क्लैरिटी। ठीक है, वो बंधन, वो दुख, वो लाचारी में रहना। Yes. उसकी हमारे अंदर स्पष्टता हो, जागृति, कि भैया मैं इतना लाचार। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल, जो व्यवहारिक एग्जाम्पल इजी पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति होता है, लोन लिया है, लेकिन उसके व्यवहार से लगता ही नहीं उसने लोन लिया है, वो ऐसे पैसे उड़ा रहा है या फिर रिलैक्स घूम रहा है, तो उसका लोन कभी रीपे नहीं। दूसरा व्यक्ति, उसने लोन लिया है, तो उसकी ग्रेविटी उस पर छाई, तो भाई मैंने लोन लिया है, इतना साल तो मुझे काम करना पड़ेगा, इतनी सेविंग करनी पड़ेगी, और वो उसमें जीता है ना।
ऐसा नहीं कि यदवा तदवा, नहीं, उसके सभी डिसीजंस वो लोन के बेस पर होते हैं कि नहीं। तो सेम वे हमारे जो भी लोन है दुख है, हमारे जो भी लोन है भय है, हमारे जो भी लोन है, ये अलग अलग प्रकार की लिमिटेशंस हम फील करते हैं। वो कोई कोने में नहीं होनी चाहिए, हमारी आंख के सामने होनी चाहिए। ये दूसरा है। पहला, भगवान को प्राप्त करने की अदम्य इच्छा है, और दूसरा कि हम हमारे पास ऋण है, लोन है, उसको रीपे करना है। मैंने कहा अदम्य इच्छा, हमारे दुख हमारी दृष्टि में रहे, ठीक है। तो एक या दो या फिर दो, कोई एक ही प्रधान होता है, दूसरा सेकंड। तब हमारे प्रयास में इंटेंसिटी, ग्रेविटी आएगी, ठीक है। दूसरे के बारे में कहूँ, इसलिए कहते हैं स्वामी विवेकानंद, दुख तो गुरु। दुख काफी चीज सिखाता है ना, उसमें हम जागृत रहते हैं। कुंती माता कहते हैं ना कि भगवान मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में आपकी स्मृति रहती, सुख में भी स्मृति हो जाती है, क्या ऐसी लिमिटेशन। ओके, तो इस प्रकार का संवाद हमारा भी बनेगा, या बनता है अभी भी। ये दो चीजें जितनी इंटेंस, ठीक है। ओके, आई गेस यहाँ तक। बाकी तो श्लोक तो एक सिंपल सा एक बता दिया है। इस प्रकार से मैंने अद्भुत संवाद विष्णु भगवान और अर्जुन का सुना। तो दैट्स ऑल। अच्छा, तो मैंने जो कहा उसमें किसी को कुछ कहना है या पूछना है? एनीबडी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम गुरुदेव से सीखेंगे, और है ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ वो पढ़ा जाए। पूजा। ज्ञानधि। जी हरिओम स्वामी जी। हम्म, हम्म। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांचक संवाद का वर्णन किया। और श्रोषुम का वर्णन किया, ऐसा रखा है सुना के बदले। गीतोपदेश का प्रारंभ होने के पूर्व अर्जुन ने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उपदेश की समाप्ति पर उसने पूर्व श्लोक में यह घोषणा की, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। इस प्रकार रोग का उपचार पूर्ण हुआ, और उसके साथ ही गीता शास्त्र की परिसमाप्ति होती है। इस संदर्भ में ईसा समूह के कथन का स्मरण होता है। प्राणदंड की शूली को ढोते हुए वे जा रहे थे। लोगों की व्यंगोक्तियों से क्षण भर के लिए वे अर्जुन की स्थिति में पहुंच गए, परंतु तत्काल मोह मुक्त होकर उन्होंने घोषणा की, हे प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अर्जुन के और ईसा समूह के वाक्यों में कितनी साम्यता है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में
गुरुदेव बात करते हैं कि जब संजय ने ये श्लोक बोला तो गीता का उपदेश शुरू हुआ और गीता का उपदेश अभी पूर्ण हुआ। इस श्लोक के साथ गीता का उपदेश जो भगवान और अर्जुन का संवाद था वो क्वेरी के रूप में पूर्ण हो गया। अर्जुन ने कहा पहले कि ऐसे 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 मेरे विचार है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है, और इस प्रकार से पूरी बात करके उन्होंने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध करना उचित नहीं लगता है। और फिर उसके लिए काफी तर्क भी दिए उन्होंने। और फिर वहीं से भगवान ने उस एंगल से उसको समझाना शुरू किया कि क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये युद्ध जो है वो तुम्हारा पर्सनल प्रतिशोध नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। इसे प्रैक्टिकल बात से शुरू करके आत्मज्ञान तक भगवान उसको ले गए और अर्जुन को पूरा उसके उसके अंदर जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे कंफ्यूजन सॉर्ट आउट कर दिए भगवान ने। अर्जुन ने भी उसको अच्छे से समझ लिया। सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ मैंने इतने इतने तर्क रखे हैं फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मुझे तो मतलब आपको ही मानना है तो अच्छा ठीक है, अभी आप कहते हैं तो मैं कर लूंगा, पर आई एम नॉट कन्विंस, ऐसे भी नहीं। भगवान ने उसको पूरा समझाया और अर्जुन ने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा और फिर वो कन्विंस हो के भगवान को बताता है कि हाँ मैं युद्ध करूंगा। अब जैसा आप कहते हैं उस प्रकार से मैं आपके वचन का पालन करूंगा। और इस प्रकार यहाँ पे मतलब इसके पहले के श्लोक पे ये पूरी बात पूर्ण हुई और उसके पूर्ण होने के साथ ये संजय जी ने ये बात यहाँ पे जैसे कि ये अभी पूरा संवाद दोनों का कंप्लीट हुआ है, इस प्रकार से इस श्लोक से ये बात को इंगित कर दिया कि वासुदेव और पार्थ के बीच में ये संवाद, अद्भुत संवाद मैंने सुना। तो बस इतने इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। और स्वामी जी साथ में जो एक एग्जाम्पल रखा है ईसा समूह का, तो वो एक्चुअली इस प्रकार से गुरुदेव कहते हैं, तो इस प्रकार से मैं इसके बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ कि मैंने ऐसे ये वाक्य नहीं सुना है। हमने ज्यादातर यही वाक्य सुना है कि हे ईश्वर इनको माफ करना, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये वाक्य ही ज्यादा सुना है हमने। पर इस प्रकार से उनको भी एक प्रकार से ऐसे थोड़ी देर के लिए मोह हुआ था और अर्जुन के जैसी स्थिति हो गई थी और फिर तत्काल उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये मैंने आज पहली बार ही जाना स्वामी जी। अच्छा पहले इशू तो मोह हुआ ऐसा तो मेरे ध्यान में भी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा से हो ऐसा का एक्सप्रेशन उनका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हमें जी अगर चिन्मय के पास इंग्लिश वर्जन अभी अवेलेबल हो तो हम उसमें से ये थोड़ा सा सेंटेंस देख सकते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश से हिंदी होता है ना तो थोड़ा भावार्थ हो जाता है। नहीं, यहाँ पर लाइट चली गई, मैं भी देख सकता हूँ। Chinmay is not there, ना? नो प्रॉब्लम। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। कृष्णा बहन। जी हरिओम स्वामी जी। मैंने भगवान वासुदेव और अर्जुन का संवाद सुना। आध्यात्म की सांकेतिक भाषा के अनुसार वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप आत्मा,
तथा पार्थ का अर्थ है जड़ उपाधियों से तादात्म्य किया जीव। जब यह जीव इस मिथ्या तादात्म्य का परित्याग कर देता है तब वह अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। आत्मानात्मा के विवेक की कला ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। तो यहाँ पे गुरुदेव यही बता रहे हैं, और जैसे संजय ने बताया कि उसने कृष्ण और अर्जुन का ये जो संवाद सुना और उन्होंने बताया कि महात्मा अर्जुन, तो यहाँ पे उसको महात्मा क्यों कहा गया है, तो थोड़ा गुरुदेव ने इसको ही आगे बताया कि आध्यात्मिकता का जो मतलब भाषा है तो वह यही बताती है कि जो वासुदेव है वो सर्वव्यापी चैतन्य रूप परमात्मा ही है, और जो पार्थ कहा है वो इसीलिए कहा है कि वो जड़ उपाधियों के साथ तादात्म्य किया हुआ जीव है। मतलब कोई भी जीव है जो इस तादात्म्य के साथ है, और जब ये जीव है उसको ये ज्ञान हो जाता है और उसके बाद वह जो ये तादात्म्य है उसको तोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, और जब वो शुद्ध आत्म स्वरूप के साथ वो मिल जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो वो जो एकत्व है वही है जो गीता शास्त्र बता रही है। ऐसा ही मतलब बताया गया है स्वामी जी। हरिओम। ओके, आई गेस क्लियर। मैंने लाइट आता है। हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ बीनाबेन। स्वामी जी, इसमें लिखा है वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी चैतन्य रूप स्वरूप आत्मा। तो जो उपाधियों वाला जीव है उसे भी गीता का अभ्यास करते करते जब ये बात पता चलती है, अपनी अनुभव में आता है, तभी ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा समझा जाना चाहिए ना। हाँ, सर्वव्यापी चेतन का ज्ञान होता है तब हमारी हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। यस। हाँ, वो अनुभूति होनी चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। हाँ, अनुभूति जागृति वो दोनों एक ही है, तो वो होना चाहिए। हम्म। हम्म। और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी देखा, आई शैल अबाइड बाय थाई विल, ये जैसे जीसस का स्टेटमेंट है, तो वहां पर मोह और मोह भंग की बात नहीं, वो अर्जुन का ही केस है। बस करिष्य वचनम तव उसके साथ पैरेलल मैच किया है गुरुदेव ने। तो ऐसे उसको लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ वीणा बेन, તમે જ વાંચી લો। जी, अद्भुत। श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद रूप में श्रवण किए गए तत्व ज्ञान को संजय अद्भुत और विस्मयकारी विशेषण देता है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होने के कारण कोई भी दर्शन शास्त्र आश्चर्यमय नहीं होता है, परंतु गीता की तत्व ज्ञान की अद्भुतता भी कुछ अपूर्व ही है। जो अर्जुन पूर्णतया विघटित और विखंडित हो चुका था, वही अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त कर सुगठित, पूर्ण और शक्तिशाली बन गया। यह एक उदाहरण ही गीता की कल्याणकारी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी कारण गीता को एक अनन्य और अलौकिक आभा प्राप्त हुई है। तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रवण किए गए जो हम ये सारी बातें अब तक सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्लास में स्टडी कर रहे हैं तत्व ज्ञान की,
वो बात सुनकर संजय अद्भुत और विस्मयकारी विशेषण देने लगता है, इतना रोमांचित हो गया है। और हमारी जो बुद्धि सूक्ष्म है, वहां से वो ग्राह्य होने के कारण कोई भी इंसान जो जागृत है, संजय है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तभी एक काम उसको सौंपा गया था, भगवान ने ही सौंपा था। तो वो आश्चर्यमय नहीं होता है, लेकिन जो संजय की क्वालिटी के कारण वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो ग्राह्य कर सकता है गीता के ज्ञान को। परंतु गीता के तत्व ज्ञान की अद्भुतता भी कुछ अपूर्व है, क्योंकि अर्जुन किस तरह से टूट गया था वो हमने पहले अध्याय में देखा कि वो बिल्कुल विचलित हो गया था और बैठ गया था कि मुझे अब नहीं करना है ये युद्ध। वो पहले स्पष्ट रूप से तैयार होकर ही आया था कि मुझे युद्ध की तैयारी पूर्व हो गई थी, उसे मालूम भी था कि सामने मेरा परिवार है, फिर भी वो तैयार था। तो हमने 2 दिन पहले जो शब्द तो भूल गई हूँ, वो दोष आ गया था, उस दोष की वजह से वो टूट गया था। उस दोष को हटाने में कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया उन्होंने, वो पूरी तरह से वो समझ गया, उससे उसकी शक्ति बलवान हुई। वो पूरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझने से उसकी वो बिखरा हुआ था, वो समेट लिया अपने आप को और तैयार हो गया। ऐसी गीता ज्ञान की महिमा है कि गीता के पास इतना ज्ञान है, इतनी कल्याणकारी भावनाएं मिलती है, इतनी कल्याणकारी शक्तियां सूक्ष्म में भी हम समझ पाते हैं, अनुभव में आ सकते हैं। ऐसी सारी प्रक्रिया से पास होकर अर्जुन ने बिल्कुल तैयार होकर भगवान को बोला कि मेरा मोह अब टूट चुका है, मैं अब आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ गीता जी का अनन्य भाव और अलौकिक आभा का परिचय बताया है गुरुदेव ने। हरिओम स्वामी जी। ये हमारे साधक लोगों के लिए भी बहुत, मुझे तो स्पर्श हो गया इस पैराग्राफ की बात करते करते, कि बहुत काम की चीज है कि मानना और जानना बिल्कुल अलग अलग वस्तु है। जब हम परमात्मा का अनुभव मान लेते हैं, तभी ये अनन्य और अलौकिक आभा हमें छू सकती है। हरिओम स्वामी। हरिओम। यस, सही है। तो ऐसे ही वंडरफुल, अद्भुत तभी होता है, वो सब्जेक्टिव मैटर है ना। एक के लिए ऑर्डिनरी, नगण्य होता है, दूसरे के लिए प्राण प्रिय होता है, ये सब्जेक्टिव। और इसलिए ज्ञान को हम भूख और तरस, अशना पिपाशा, अशना पिपाशा के साथ कनेक्ट किया है कि अशना पिपाशा है तो हमें खाना और पानी की नीड महसूस होगी और हमें अच्छा भी लगेगा। तो सेम वे ज्ञान की अगर अशना पिपाशा है, प्यास है, भूख है, तब वो उसकी नीड भी हमें महसूस होगी, हमें ऐसा लगेगा, हमें क्लैरिटी होगी, आई एम ए नीडी एंड इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, और नीड फॉलो भी कर रहे हैं, उसको फुलफिल करने का प्रयास भी हमें वर्थ वाइल लगेगा, करेंगे। बढ़िया। ठीक, फिर अद्भुत वगैरह। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, हाँ शिल्पा बहन। જી સ્વામીજી ગીતામાં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય પોતાની પરિસ્થિતિઓનો સ્વામી છે, દાસ નથી. તેમાં સ્વામિત્વની આ ક્ષમતા પહેલેથી જ વિદ્યમાન છે. જ્યારે આ સત્ય ઉજાગર કરવામાં આવે છે ત્યારે સંજયને માટે એ સ્વાભાવિક છે કે તે અંદર આનંદ વિભોર થઈને અને અદ્ભુત કહી ઉઠ્યા. तो यहाँ पे जो अद्भुत शब्द संजय जी ने बोला है, उसके बारे में एक और बात भी रख दी है कि
गीता जी में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि मनुष्य जो परिस्थिति है ना उसका वो स्वामी है, उसका वो दास नहीं है। तो उसमें यह स्वामित्व की जो क्षमता है वो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। तो इस सत्य को उजागर यहाँ पे किया गया है गीता जी में कि जो पहले से ही विद्यमान है उसको ही बाहर निकालना है। तो इसलिए संजय जी आनंद विभोर होकर इसको अद्भुत कहते हैं, इस संवाद को अद्भुत बताते हैं। हरिओम स्वामी जी। यस, गुड। 4 लेवल पर यही बात है कि ऑलरेडी आत्मा विद्यमान है, बस अनकवर करना, डिस्कवर करना। कवर है, इसको निकालना, ठीक है। और उसको कवर को ही कहते हैं अवरोध या फिर अज्ञान, या फिर गीता की भाषा में क्या कहेंगे, मोह। ऐसे कनेक्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वामी जी टाइम हो चुका है। हरिओम। टाइम 0 है, पैराग्राफ 2 है, ठीक है। ओके, तो पूर्ण मदद થઈ જાય। हाँ शिल्पा बहन। जी स्वामी जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम बधाने। ओके, हरिओम एवरीबॉडी। आज का सेशन समाप्त हुआ, कल नीला बहन के वहां मिलेंगे। आवजो। हरिओम। प्रणाम। हरिओम हरिओम स्वामी स्वामी जी। जी, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। स्वामी जी। हरिओम स्वामी हरिओम जी। स्वामी जी प्रणाम। हरिओम हरिओम बटाना हरिओम। प्रणाम हरिओम स्वामी जी।